strengthening relations with the Russian Federation remains an important priority for Pakistan. We believe that Pakistan-Russia relations not only serve our respective national interests, but also contribute to regional and global stability and security. We intend to intensify cooperation with Russia in the areas of trade, economy, security, counterterrorism, defense, as well as cultural, educational, and people-to-people contacts. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ ماسکو میں روس نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورے کرنے کے لیے بطور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ماسکو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو توانائی کی قلت کا سامنا ہے۔ امید ہے کہ میرے روس کے دورے میں اس سلسلے میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ توقع ہے کہ دوسرے ممالک روس کے ساتھ باہمی تعلقات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل اور روس کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تمام شعبوں میں روسی وزیر خارجہ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور روس کے تعلقات دو طرفہ اور علاقائی استحکام کے لیے اہم ہیں اور پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کا مختلف عالمی فورمز میں تعاون سے متعلق یکساں موقف ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ غیر جانبدارانہ پوزیشن کے حوالے سے پاکستان کا موقف قابل تحسین ہے۔ International organizations under the pretext of the Ukrainian conflict. The visit of the minister was very timely and we have a clear confirmation of our mutual aspiration to expand cooperation in all the areas. We will continue supporting each other. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا۔ وفود کے سطح پر مذاکرات شروع ہو گئے۔ IMF وفد کے پاکستانی وفد کے ہمراہ اہم مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے، جبکہ ناتھن پورٹر IMF وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ملاقات میں نویں جائزہ مشن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے مابین 2 فروری تک تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ IMF کا جائزہ مشن پاکستان میں 10 روز قیام کرے گا۔ جائزہ مشن اور پاکستان کے مابین $1.1 ارب کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ شروع ہونے والے ٹیکنیکل مذاکرات جمعے کے روز تک جاری رہیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاشی ڈیٹا کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد 9 فروری تک پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ نویں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر پروگرام ٹریک پر آنے اور $1.10 ارب ملنے کا امکان ہے۔ مذاکرات میں IMF کو جولائی تا دسمبر 2022 معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ سیلاب سے $30 ارب کے نقصانات اور اخراجات پر بریفنگ دی جائے گی اور ٹیکس محاصل ایکسچینج ریٹ سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ IMF کے جائزہ وفد کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، انرجی سیکٹر اصلاحات پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ گردشی قرضے اور نجکاری پروگرام میں پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF جائزہ مشن کی آمد سے قبل ہی متعدد شرائط پوری کی جا چکی ہیں اور بجلی اور گیس کے بارے میں بھی جلد فیصلہ متوقع ہے، جس کے بعد IMF کے ساتھ اقتصادی معاہدے کی تکمیل کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ ق کا صدر قرار دیتے ہوئے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ ق کے صدر برقرار رہیں گے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے متعلق کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کی برطرفی کو پارٹی آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کارروائی بھی غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں ق لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جاری کردہ پارٹی الیکشن شیڈول بھی کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں پارٹی صدر برقرار رکھا ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس اگست میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। याद रहे कि चंद रोज कबल मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाया गया था। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग के मशावरती इजलास के दौरान चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया, जबकि उनकी जगह उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक गवर्नर KPK की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद कहा कि आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है, जबकि असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। याद रहे कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन 24 जनवरी को दोनों गवर्नर्स को खत लिख चुका है, मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन को जवाब मौसूल नहीं हुआ। खानीवाल में डायरेक्टर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नवीद और इंस्पेक्टर नासिर को शहीद करने वाला दहशतगर्द मारा गया। तफसीलात के मुताबिक हसास इदारों के अफसरान को शहीद करने वाला दहशतगर्द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक हुआ। दहशतगर्द उमर न्याजी ने 3 जनवरी को ISI के 2 अफसरान को शहीद किया था। हलाक दहशतगर्द ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर को शहीद करके फरार हो गया था। करम एजेंसी में खुफिया इत्तलात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। सिक्योरिटी इदारों ने फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार दहशतगर्द कुछ देर बाद हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द ने खानीवाल में हसास इदारे के 2 अफसरान को फायरिंग करके शहीद किया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दहशतगर्द को अफगानिस्तान फरार होने से पहले काबू कर लिया। डायरेक्टर नवीद को दौरान जिंदगी पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल अवार्ड सितारे शुजात से नवाजा गया था। बाद शहादत डायरेक्टर नवीद और इंस्पेक्टर नासिर को हिलाल शुजात और तमग़े शुजात से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि नवीद सादिक इंसदाद दहशतगर्दी विंग के डायरेक्टर थे। उन्होंने बतौर सब इंस्पेक्टर 2002 में पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और बाद में मुकाबले का इम्तिहान देकर 2009 में ISI में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात हुए। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान कालेदम तंजीमों के अहम नेटवर्क्स को बेनकाब किया। उन्होंने कई माह की कोशिशों के बाद दाइश के आला कमांड तक रसाई हासिल की और फैसलाबाद में उनकी कमीन गाह का पता लगाकर छापा मारा और दहशतगर्दों को बेअसर किया। इसी तरह गुजरांवाला में खुदकश हमला आवरों का मुकाबला किया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के अगवा होने वाले बेटे अली हैदर गिलानी को अगवा करने वाले नेटवर्क का सुराग लगाने का सहरा भी उनके सर सजा। इसके अलावा उन्हीं की यूनिट के 2 अफसरान इंस्पेक्टर उमर मुबीन जिलानी और सब इंस्पेक्टर यासिर को शहीद करने वाले कालादम तंजीम का नेटवर्क भी उन्होंने ब्रेक किया। इनकी अहलिया भी इंसदाद दहशतगर्दी विंग में बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रही हैं। बल्दियाती इंतखाब को मुकम्मल हुए 16 दिन गुजर गए और आज 15 दिन और 15वें 16वें दिन भी आप ये देखें कि अब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि 2 तारीख को जो 9 सीटों का फैसला है और उसके अलावा भी हमने बहुत सारी सीटें जिस पर धांधली हुई है और रिकाउंटिंग में जिस पर गड़बड़ की गई है वो भी इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी टेकअप हो जाएगा तो फौरी तौर पर ये मसला रिजॉल्व हो और उसके साथ जिन सीटों पे बाई इलेक्शन होने हैं उसका शेड्यूल भी जल्द अज जल्द आना चाहिए और महीना 34-35 दिन जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें फौरी तौर पर ये शेड्यूल अनाउंस हो जाना चाहिए ताकि ये काउंसिल मुकम्मल हो और फिर अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर मेयर और टाउन के चेयरमैन और यूसी के चेयरमैन अपने ओथ उठा लें और तमाम रिजर्व सीट्स के इंतखाबात भी उसके साथ साथ मुकम्मल हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। सिंध हुकूमत आइन में तरामीम करके मेयर को इख्तियारात दे।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि धरने के वक्त जो वादे किए गए वो पूरे होने चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 दिन हो गए, प्रोसेस मुकम्मल ना होना बाइस तशवीश है। इंसाफ ना मिलने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। जमात इस्लामी अपने एक एक वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रही है। हमने ये जिद्दोजहद सड़कों पे भी की है और ये जिद्दोजहद हम अपने कानूनी ज़राए पूरे करके कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त एक सेल हमने कायम कर दिया है और वो 9 सीटें जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हैं, इसके अलावा भी हम 25-30 सीटें ऐसी हैं जिस पर हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और अगर ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत पड़ेगी तो ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि कोई भी जमात इस्लामी का मुंतखब उम्मीदवार खरीद नहीं सकता। अगर किसी को खरीदा गया तो भरपूर तरीके से एक्सपोज करेंगे। अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमात इस्लामी किसी से लड़ना नहीं चाहती। जिन यूसीस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जो सीटें हम सैद्धांतिक के जरिए ली गई हैं वो वापस लेकर रहेंगे। मर्दमशुमारी के हवाले से अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, मर्दमशुमारी का तो उसूल ये भी है कि सिफारतकार को भी गिना जाए। मर्दमशुमारी के लिए जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो भी निगरानी करेंगे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी मजम्मत की। IMF इनसे ये नहीं कहता कि अपनी अय्याशियां कम करो। IMF ये नहीं कहता कि जो तुमने प्रोटोकॉल पर इतने पेट्रोल का बिल बन रहा है वो भी तो डॉलर में ही होता है, उसको कम करो। जो भी हासिल कर रहा है इस कौम के ऊपर बोझ डालकर, सबसे पहले तो उसे कुर्बानी देनी चाहिए ना। जब तक हुक्मरान कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक वज़रा कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक अशराफिया कुर्बानी नहीं देगी तो आवाम के ऊपर आप सारा बोझ डाल दें और हमसे कहें कि हम कुछ कर नहीं सकते और खुद अपनी अय्याशियां कम नहीं करें। अगर सिर्फ ये प्रोटोकॉल वाले और एक मखसूस तबके के ऊपर खर्च होने वाले पेट्रोल को कम कर दिया जाए तो 20-30% जो है हमें बचत हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने मिक्की ऑर्थर के लिए हेड कोच की बजाय टीम डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ करा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का ओहदा खत्म करने का फैसला हो गया है। पाकिस्तान टीम हेड कोच नहीं असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। मिक्की ऑर्थर टीम डायरेक्टर होंगे जो तमाम मामला देखेंगे। मिक्की ऑर्थर इंग्लिश काउंटी सीजन के दौरान पाकिस्तान टीम के साथ दस्तयाब नहीं होंगे। मुतवक्के मुआहदे के तहत मिक्की ऑर्थर वर्ल्ड कप 2023 और दौरे ऑस्ट्रेलिया पर टीम के साथ होंगे। PCB ने मिक्की ऑर्थर के लिए चीफ ऑफ स्टाफ तैनात करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रिहानुल हक को बतौर टीम मैनेजर तैनात किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक रिहानुल हक बुनियादी तौर पर मिक्की ऑर्थर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। ज़राए के मुताबिक PCB ने मिक्की ऑर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग 3 असिस्टेंट कोचेस रखेगा। ग्रांट ब्रैडबर्न को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मिक्की ऑर्थर के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आने का इम्कान है।